Welcome to Notopedia. In this tutorial, we are going to discuss transportation problem with Vogel approximation method. In other way, we can call it as VAM. So in this tutorial, we will see how we can find out the initial solution using VAM technique. For this purpose, let's find out the initial solution using Vogel approximation for a given set of data. What is given in the data is we have some source A, source B and source C. And then we have corresponding supplies. That means how much material these sources can supply. So that is 500, 300 and 200 respectively. If you take the total, it will become 1000. Similarly, for the given source to supply these material to some destinations. So these destinations are given as P, Q, R and S. And all these destination has some requirement, what we are calling it as demand. Demand as 180, 150, 350, 320 respectively. If I will add all these demand, it will equal to 1000, which is same as the total of the supply. Now since the total demand and the total supply are same, we can call it as a balanced problem. Now if in case total demand and supply won't be same, we will call it as unbalanced problem. Now since it is balanced in this particular case and we are using Vogel approximation method, so first what we need to find out is the differences for each row and each column. We need to find out differences for each row and each column. How we are going to find out the differences? So differences is basically the difference between the lowest value of that particular row and the second lowest value of that particular row. That is for in case of rows. Similarly, if it is a column, the difference between the lowest value in the column and the second lowest value in the same column. Now, what does these lowest value and second lowest values are? Lowest value and second lowest values are the values which you can see in the green boxes. What are these values are? These values are per unit cost of transportation. मतलब हर एक यूनिट एक सोर्स से एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन ले जाने के लिए पर यूनिट कॉस्ट मेरा क्या आएगा ट्रांसपोर्टेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर पहला कॉर्नर में आप जो वैल्यू देख रहे हैं वो लिखा है 12. दैट मीन्स फ्रॉम सोर्स ए टू टेक द मटेरियल एंड गिव इट टू द डेस्टिनेशन पी, तो हर एक मटेरियल पे जो पर यूनिट कॉस्ट आएगा वो आएगा 12 रुपये, 12 रुपीज. Similarly, other values are given for the moving material from given source to destination. Now, we will start with the first row, that means first source. We will find the difference for the first source A, which is the minimum value in the first row is 10. Second lowest value is 12. Now, don't get confused कि आपने 12 हमने P वाला लिया है, R वाला नहीं लिया. दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर, बिकॉज द होल सोल पर्पज इज टू टेक द डिफरेंस. सो लोएस्ट इज 10, सेकेंड लोएस्ट इज 12, सो डिफरेंस विल बी योर 2. इसी तरीके से हम बी सेकेंड रो के लिए निकालेंगे, रो सोर्स बी के लिए लोएस्ट है 7, सेकेंड लोएस्ट है 8, so difference is 1. Now we'll go to the row number 3, that is source C. Lowest is 6, second lowest is 7, difference is 1.
ये हमने कर लिया सारे रो के लिए, जितने भी रो हैं एक साथ आप कर लीजिए. देन मूव टू कॉलम. कॉलम इफ आई एम मूविंग विल डू इट फॉर द फर्स्ट कॉलम. व्हाट इज मिनिमम इज 6, second lowest is 7, so the difference is 1. Similarly for the second column, minimum is 10, second lowest is 11, so the difference is again 1. Third column, minimum is 8, second lowest is 11, so the difference is 3. Move to the fourth column, which is lowest is 7, second lowest is 13, so the difference is 6. So this is how you need to first find out the first round of differences for each row and each column. Now once you have identified the first round of difference for each row and each column, we need to figure it out in D1, comparing all the values which is there in the D1, which is the maximum difference. Maximum difference is 6. So we will do the allocation in this particular column. It is not necessary that कि हमेशा कॉलम्स में ही आए. अगर ये डिफरेंस D1 में जो डिफरेंसेस है अगर ये रो में होगा तो उस रो में हम एलोकेशन करेंगे. तो जो भी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा उस रो या उस कॉलम में हम एलोकेशंस करेंगे. यहाँ पे है फोर्थ कॉलम में डिफरेंस सबसे ज़्यादा. अब पॉइंट ये है कि अगर इस कॉलम में मैं एलोकेशन करूंगा तो किस सेल में करूंगा. क्या मैं 13 वाले सेल में करूंगा, 14 वाले में करूंगा, 7 वाले में करूंगा. ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि तीनों पर्टिकुलर कॉलम में कौन सी वैल्यू मिनिमम है. दैट इज मिनिमम पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सो मिनिमम इज 7, विच मीन्स my first allocation will be in that particular cell which is having minimum per unit transportation cost. So I will do the allocation. Now how I will do and how much? Again I am repeating. जिस उस पर्टिकुलर कॉलम के उस सेल में हम एलोकेशन करेंगे जिसमें मिनिमम पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा. यहाँ पे है 7 में हम एलोकेशन करेंगे. पॉइंट इज हाउ मच. Now if you see इस पर्टिकुलर सेल के करस्पॉन्डिंग डिमांड है 320 की, बट सप्लाई है सिर्फ 200. सो इन दैट केस वी कैन ओनली असाइन 200 यूनिट्स. 200 यूनिट हमने असाइन कर दिया, विच मीन्स द डेस्टिनेशन एस की रिक्वायरमेंट अब कितनी बच गई 320. पहले कितना था 320 था, अब 200 माइनस हो गया. रिक्वायरमेंट लेफ्ट आउट इज 120. एंड सोर्स सी से जितनी पॉसिबल सप्लाईज थी वो क्या हो गई, सारे के सारे फिनिश हो गए. सो नाउ वी कैन नॉट सप्लाई, वी आर नॉट इन द पोजिशन टू सप्लाई एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम द सोर्स सी बिकॉज इट इज ऑलरेडी यूज्ड. सो फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी आप एक डॉटेड लाइन से उस पर्टिकुलर रो को कट कर दिए जहाँ की सप्लाईज सारी खत्म हो गई हैं. आप पेंसिल से कर सकते हैं, नहीं करना चाहे कंफर्टेबल है तो आप नहीं भी कर सकते हैं. दिस डजंट मेक एनी डिफरेंस. नाउ फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट राउंड एलोकेशन. नाउ वी नीड टू डू द सेकंड राउंड ऑफ एलोकेशन. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज D2. नाउ D2 अगेन द प्रोसेस विल रिमेन सेम. हम फिर से फर्स्ट रो में एलोकेशन चेक करेंगे, डिफरेंसेस चेक करेंगे. फर्स्ट रो का जो मिनिमम है वो अभी भी क्या है 10 है और सेकेंड लोएस्ट क्या है 12 है. तो द डिफरेंस विल बी 2. गो टू सेकेंड रो, दैट इज सोर्स B. इफ आई विल गो टू सोर्स B which is minimum is 7, second lowest is 8, so the difference will be 1. Now go to third row, बट थर्ड रो का तो सप्लाई अपने हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि सारे जितने हमारे पास सप्लाई था सारा सारा कंज्यूम हो चुका है. तो यहाँ पे अब हम एलोकेशन नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम डिफरेंसेस कैलकुलेट नहीं करेंगे. विल गो टू द फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम में मिनिमम क्या है 7,
सेकेंड लोएस्ट क्या है 12, क्योंकि दो ही वैल्यूज बची हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आप ले लीजिए, दैट इज 5। अब पॉइंट है कि 6 क्यों नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 6 की जो सेल है उसकी सप्लाई कहाँ से आएगी, सी से आएगी, और सी ऑलरेडी क्या हो चुका है, एग्जॉस्टेड हो चुका है, तो उस पर्टिकुलर सेल को हम काउंट नहीं करेंगे। तो जो रिमेनिंग सेल्स बची है उस कॉलम में उसको हम कंसिडर करेंगे डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। सिमिलरली गो टू द सेकेंड कॉलम, द डिफरेंस इज 10 and 11, difference is 1. Third column, difference is 4. Fourth column, difference is 1. Now again the process remains same. Find out which is having the maximum difference. So the difference 2 में किसका सबसे ज़्यादा है वैल्यू, that is for the first column, that is 5. Now we will do the allocation in the first column. First column का allocation करने के लिए मुझे ये आइडेंटिफाई करने का पड़ेगा कि कौन सा सेल है जिसकी वैल्यू लोएस्ट है। नाउ 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि उस सेल का ऑलरेडी सारी सप्लाई एग्जॉस्टेड है, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, 7 and 12. नाउ 7 इज द मिनिमम, सो वी विल डू द एलोकेशन इन द सेल नंबर BP, दैट इज वेयर द कॉस्ट इज 7. पॉइंट इज हाउ मच एलोकेशन वी विल गोइंग टू डू। नाउ रिक्वायरमेंट कितनी है P डेस्टिनेशन की 180, और B सोर्स से सप्लाई कितना है 300. सो दैट मीन्स हम कितना लोकेशन कर सकते हैं 180. सो इफ आई एम मेकिंग ए लोकेशन ऑफ 180, नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ डेस्टिनेशन P इज बीन फुलफिल्ड, और B सोर्स के पास कितना मटेरियल रह गया, वो है 120. Now I will make a dotted line for the column P as well, and I will make a small cross sign on the P. क्यों, क्योंकि वहां पे अब मैं कोई भी मटेरियल नहीं भेजूंगा, क्योंकि वहां की जितनी कैपेसिटी थी, जितनी रिक्वायरमेंट थी, वो फुलफिल हो चुकी है. Now I need to do the third round of allocation. So I need to find out the third difference. Again, फर्स्ट सोर्स में अभी भी सप्लाई अवेलेबल है, सो वी विल फाइंड द डिफरेंस. सो मिनिमम इज 10 एंड द लोएस्ट इज अगेन 12. मिनिमम इन द फॉर Q is 10 and R is 12, so difference will be 2. For the second row, minimum is 8 and second lowest is 11, so the difference is 3. क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी जो मेरा पहला कॉलम है P का वो एग्जॉस्ट हो चुका है, फुल हो चुका है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. हम सिर्फ उसी सेल को कंसिडर करेंगे जो एग्जॉस्ट नहीं हुआ है. नाउ ऑलरेडी C सोर्स एग्जॉस्टेड हो चुका है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. फर्स्ट कॉलम भी कंसिडर के लिए भी हम डिफरेंस नहीं निकालेंगे. वी विल फाइंड आउट फॉर द सेकेंड कॉलम. सो मिनिमम is 10, second lowest is 11, the difference is 1. For the third column R, the minimum is 8, second lowest is 12, difference is 4. And similarly for the fourth column S, the minimum is 13 and the second lowest is 14, so difference is 1. Process will remain same. We will check in the D3 which is the maximum difference, that is 4. So now we will do the allocation in the column where the maximum difference lies, that is column R. If I am going to do allocation in column R, तो सेल जो आपका है जिसमें पर यूनिट कॉस्ट 11 है वो तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि वो C सोर्स से फिल किया गया है, उससे पॉसिबल है वहाँ पे ले जाना. तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक 8 और एक 12 वाला सेल. अब दोनों में मिनिमम क्या है 8 है, राइट. सो विल डू द एलोकेशन इन द सेल विच इज हैविंग लोएस्ट कॉस्ट. सो हाउ मच एलोकेशन वी कैन पॉसिबली डू इज 120. क्यों, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है 350 का, सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है 120. तो जितनी सप्लाई अवेलेबल है उतना ही वहाँ पे हम फुल कर सकते हैं. सो 120 हमने दे दिया उसे. सो स्टिल द रिक्वायरमेंट ऑफ R इज 230 एंड द सोर्स B इज नाउ एग्जॉस्ट. जितनी सप्लाई थी उसके पास सारी उसने ऑलरेडी सेंड कर चुका है.
So we can also cut the source B and we can create a dotted line for the second row also. Now if you see, there is only one row which is left and there is 3 column which is left, that is source A जहाँ से सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है और 3 डेस्टिनेशन पे हमें रिक्वायरमेंट है Q, R एंड S. सो अब हमें डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज़ वेल नोन, क्योंकि रो फर्स्ट रो में ही एलोकेशन मुझे करनी है और कॉलम चाहे कोई भी हो. सो कोई भी से मतलब ये है कि वी नीड टू चेक कि किसका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो मिनिमम है. सो अगर मैं सोर्स ए से सप्लाई करूंगा तो किस डेस्टिनेशन में ले जाने के लिए मेरे को पर यूनिट कॉस्ट कम देना पड़ेगा. सो इफ यू सी द सेल नंबर Q, वहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट है 10 विच इज लेसर देन 12 एंड 13. सो मेरा नेक्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन होगा सेल नंबर AQ पे जहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट 10 है एंड वी आर मेकिंग ए मूवमेंट ऑफ 150, क्योंकि सोर्स A अभी 500 दे सकता है बट द रिक्वायरमेंट उस सेल की कितनी है 150 की है. सो वी आर गिविंग सप्लाई ऑफ 150. नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ डेस्टिनेशन Q इज बीन फुलफिल्ड. सप्लाई कितनी बच गई हमारे पास 350. नाउ नथिंग मोर वी कैन सप्लाई ऑन टू द डेस्टिनेशन Q. सो हमने Q पे भी एक क्रॉस लगा दिया. अब बच गया हमारे पास 2 डेस्टिनेशन R एंड S. तो मिनिमम इज फॉर R destination which is having cost of 12. So we will give a supply from source A to the destination R. Now point is how much. Now the requirement is 230 but supply is 350. तो supply is sufficient available है हमारे पास, तो हम 230 इसको supply कर देंगे. 230 आपने जब supply कर दिया हमने तो हमारे पास कितना requirement बच गया 0. So that means there is no further requirement for the destination R. अब हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स बच गया और एक ही डेस्टिनेशन बच गया. नाउ डेस्टिनेशन S जिसकी रिक्वायरमेंट है 120 और सोर्स A जिसके पास अब सप्लाई अवेलेबल कितनी है 120. सो ये हमने रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द इनिशियल सॉल्यूशन यूजिंग वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड कि किस सोर्स से कितना मटेरियल किस डेस्टिनेशन में हम लेके जाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस WAM we have obtained 6 initial solutions. Now we can put these 6 solution in a tabular form to find out the transportation cost. Now how we are going to find out the transportation cost? Let's put these value in the table. That is transportation cost table. The first column again we are using the movement, that is what we call it as initial solution, number of units which we are going to move and what is the per unit transportation cost and what is the total cost. The first movement was from the source A to destination Q, which we are moving 150 units at a cost of rupees 10. From the second movement is from source A to destination R, 230 units with a cost 12. From source A to S destination, the number 120 units with a 13 rupees per unit cost. Then from source B to P destination, 180 units with a cost of rupees 7. From source B to destination R, 120 units with a per unit cost of 8 rupees. And then the last movement is from source C to destination S, that is 200 units with the per unit cost of 7. Now we will find out the total cost. That means multiply the number of unit with per unit transportation cost. नंबर कितनी यूनिट हमने ट्रांसपोर्ट किया है
और 1 यूनिट के ट्रांसपोर्ट का क्या कॉस्ट है। तो कितना आ गया हमारे पास 1500, किसके लिए, पहले मूवमेंट के लिए। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट फॉर द सेकेंड मूवमेंट, फॉर द थर्ड मूवमेंट, फॉर द फोर्थ मूवमेंट, फॉर फिफ्थ मूवमेंट एंड सिक्स्थ मूवमेंट। तो ये हमें वैल्यूज मिल गई कि हर एक मूवमेंट के लिए आने के लिए किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन ले जाने के लिए हमें कितना एक्सपेंडिचर इंकर करना पड़ेगा। तो द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूजिंग वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड is rupees 9440, right? Now that is how we can find out the transportation cost using Vogel approximation method. Now one important point over here is we need to know which method, which technique is more feasible in terms of effectiveness, राइट कि जो हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाला पहले नॉर्थ वेस्ट से हम निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड से, हम निकाल सकते हैं वैम मेथड्स। तो इन तीनों मेथड से अगर हम निकालेंगे फॉर अ गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो किसका कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा। अगर सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए अगर मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से निकालूँ तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा 10,220 रुपीज़। लीस्ट कॉस्ट स्क्वायर मेथड से, लीस्ट स्क्वायर मेथड से 9,620 एंड वैम मेथड से अगर मैं निकालूं तो मेरा आ रहा है 9,440। Now if you see what is the minimum transportation cost, the minimum transportation cost is 9,440। तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर मुझे इनिशियल सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करने हैं कि किस सोर्स से मैं किस डेस्टिनेशन पे मटेरियल मूव करूं और कितना मूव करूं, तो मैं प्रेफर करूंगा वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, क्योंकि इस मेथड के थ्रू मैं कॉस्ट को अपना सेव कर सकता हूं। तो जो भी मेरा कॉस्ट सेव होगा वो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है, राइट। सो दैट इज हाउ वी कैन मेक ए कंपैरिजन ऑल्सो। Thank you for watching this tutorial. Please do write your comments and suggestions and any query which you have related to the topic what we have discussed in the given tutorial. And also please do subscribe the channel for more such learning videos.